students. Hello students. Today we'll do chapter number 26, active and passive voice. A point, active and passive voice. Look at this sentence. Avika loves coffee. Avika does the action, loves your action word, and coffee receives the action. Now look at the same sentence in a different way. Avika subject, loves verb, coffee object. Avika is doing the verb here. This thing we know. तो जो काम कर रहा है that is doer, and जो action receive कर रहा है that is your receiver, and this is verb is your action word. So action word is verb. Doer of the action जो कि verb से पहले लिखा गया है that is your subject, and after the verb this is your object who is receiving the action. Okay. So in this sentence we can clearly see that Avika is doer of the action and this is also the subject of the sentence. Okay. वो काम भी कर रही है, doer भी है and subject भी है. So if in a sentence the subject and the doer are same, if the doer of the action in a sentence is also the subject, अगर doer है जो वो subject भी है, then the sentence is in active voice. Okay. एंड ऑब्जेक्ट यू ऑल नो बेटा, हमने वर्ब वाले चैप्टर में किया था. ऑब्जेक्ट हम कैसे निकालते हैं? ऑब्जेक्ट गिव्स यू द आंसर ऑफ व्हाट एंड होम. ओके, नाउ लुक एट दिस सेंटेंस. कॉफी इज लव्ड बाय अविका. द मीनिंग इज सेम. व्हेन वी से अविका लव्स कॉफी, उसका मतलब भी यही है कि अविका को कॉफी पसंद है. एंड व्हेन वी से कॉफी इज लव्ड बाय अविका, उसका मतलब भी ये है कि कॉफी अविका पसंद करती है. द ओनली थिंग इज दैट यहाँ पे हमने कॉफी को सब्जेक्ट बना दिया है. पहले वो ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे हमने उसको सब्जेक्ट बना लिया है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि अविका यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया है. ओके, अविका इज हेयर ऑल्सो इट इज डूअर ऑफ द एक्शन. ठीक है, सब्जेक्ट नहीं है अविका यहाँ पे, बट इट इज डूअर ऑफ द एक्शन, ऑब्जेक्ट नहीं है. ओके, सो कॉफी इज लव्ड बाय अविका. इन दिस सेंटेंस यहाँ पे क्या है बेटा? जो कॉफी है वो सब्जेक्ट भी है एंड इट इज़ ऑल्सो रिसीविंग द एक्शन. अभी भी तो एक्शन तो कॉफ़ी ही रिसीव कर रहे हैं ना. ओके, कॉफ़ी इज़ लव्ड बाय अविका बिकॉज अविका इज़ डूअर एंड दिस इज़ द रिसीवर. सो व्हेन इन अ सेंटेंस इफ द सब्जेक्ट इज़ द रिसीवर ऑफ द एक्शन, यहाँ पे क्या था? अगर डूअर सब्जेक्ट है, यहाँ पे है अगर रिसीवर सब्जेक्ट है तो क्या होगा? दैट सेंटेंस इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस. हेयर सब्जेक्ट and doer and here subject and receiver same. Okay, now let us take some more examples. Virat played the match. The subject is Virat here. We know Virat subject है, क्योंकि वही काम कर रहा है. subject Virat है. subject का कैसे पता चलेगा? verb से पहले जो लिखा गया that is your subject. और subject doer है बेटा एक्शन का, ये हमें पता है. playing का जो वर्क है वो कौन कर रहा है? विराट ही कर रहा है. और वो खेल क्या रहा है? Played what? Match. So match is the receiver of the action. So this is receiver, this is the doer. And doer is also subject here. So this sentence is in active voice because doer and doer and subject are same. The match was played by Virat. Same sentence in different way. Here match is your subject and the match is also the receiver. When subject and receiver are same, then it is said to be in passive voice. The sentence is said to be in passive voice. One more example. I'll buy these books. I is doing the work and I is also subject. So active voice. These books will be bought by me. These books, receiver of the action, and also this is your subject. So this is in passive voice. Okay, now next page. One more example. My mother has knitted these gloves. These gloves have been knitted by my mother. Here my mother is doer and subject, so it is active. And here these gloves, receiver and subject, so this is passive voice. Now see, let us understand the basic structure of the two sentences. Active voice का structure क्या है? पहले हम subject लिखते हैं. For example, the driver applied the brakes. Subject, then we have verb and then we have object. This is the basic structure of active voice. Subject, verb, object. Passive voice का structure क्या है बेटा? Same sentence को हमने passive voice में convert किया है. The brakes were applied by the driver.
here breaks subject, then your verb, and then we add by, and then the doer of the action. यहाँ पे हम इसको ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, ऑब्जेक्ट ने सब्जेक्ट की जगह ले ली है, बट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, उसको हम डूअर बोल के रखेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे उसको, ठीक है. ओके, नाउ डी पॉइंट एक्सरसाइज 1, इसमें हमें क्या करना है, वी हैव टू राइट ए फॉर एक्टिव वॉइस एंड पी फॉर पैसिव वॉइस इन दीज बॉक्सेस. सो द फर्स्ट वन, दिस शॉपकीपर सेल्स फ्रेश वेजिटेबल्स. हेयर द एक्शन वर्ड इज सेल्स, एंड हु इज डूइंग हेयर, हु इज डूइंग दिस वर्क, शॉपकीपर. सो शॉपकीपर, देखो जो फर्स्ट वर्ड्स हैं यहाँ पे, जैसे दिस शॉपकीपर, मिसेस घोष, द पोएम, आवर हाउस, लंच, ही, दीज प्लांट्स, these are subjects, but here the action of selling कौन कर रहा है, शॉपकीपर. सो शॉपकीपर इज ऑल्सो द डूअर, सब्जेक्ट तो है ही, तो ये डूअर है, तो दिस इज योर एक्टिव वॉइस. व्हेन वी से द पोएम वॉज नॉट एक्सप्लेन्ड वेल, यहाँ पे डूअर हमें बता नहीं रखा है. जब हम पैसिव वॉइस में कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो जरूरी नहीं है बेटा हर सेंटेंस में आपको डूअर बताया जाए, ठीक है, इट इज़ नॉट नेसेसरी. सो द पोएम क्या हो रही है, एक्सप्लेन कर तो नहीं रही ना, वो एक्सप्लेन हो रही है. सो पोएम इज रिसीवर ऑफ द एक्शन, सो दिस इज पैसिव वॉइस. सो इन दिस वे वी हैव टू डू दिस एक्सरसाइज. नाउ ई पॉइंट, sentences in the active voice are simple, short and elegant. Besides, using the active voice is more natural. Active voice में जब हम sentence बोलते हैं तो वो बहुत नेचुरल लगता है, और वो सिंपल भी होते हैं, शॉर्ट भी होते हैं, एलिगेंट भी होते हैं. बोथ द फॉलोइंग सेंटेंसेज मीन द सेम थिंग. मिसेस जैन टीचेज इंग्लिश, इंग्लिश इज टॉट बाय मिसेस जैन. दोनों का मतलब सेम है, बस एक हमने एक्टिव वॉइस में बोला है, एक हमने पैसिव वॉइस में बोला है. बट इट इज़ कॉमन टू यूज द फर्स्ट सेंटेंस बिकॉज इट इज़ मोर नेचुरल. दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन फिर भी हम फर्स्ट सेंटेंस को प्रेफरेंस देते हैं बिकॉज ये ज़्यादा नेचुरल लगता है. However, we prefer to use the passive voice in the following cases. और कुछ केसेस ऐसे होते हैं बेटा जहाँ पे पैसिव वॉइस ही आप यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, द पर्सन और थिंग रिसीविंग द एक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द डूअर. जब सेंटेंस का एक्शन का जो रिसीवर है वो डूअर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस टाइम हम पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द चीफ गेस्ट वॉज वेलकम्ड बाय द हेड गर्ल. ये पैसिव वॉइस है, इसको हम एक्टिव में बोलते तो ऐसे बोलते, the head girl welcomed the chief guest, but here it is clearly shown that हमारे लिए chief guest important है, तो हमने उसको इस तरह से लिखा है, the chief guest was welcomed by the head girl. My story was appreciated by all the judges. जजेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसने भी ये बात बोली उसके लिए उसकी स्टोरी इंपॉर्टेंट है, तो उसने पैसिव वॉइस में ये सेंटेंस बोला है. नाउ द सेकेंड सेंटेंस, द डूअर ऑफ एक्शन इज नॉट नॉन व्हेन द डूअर इज नॉट नॉन. जैसे कि आपने देखो यहाँ पे ये सेंटेंस है, द पोएम वॉज नॉट एक्सप्लेन्ड वेल. यहाँ पे हमने सिर्फ ये बोला है कि पोएम को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया था, हमें ये नहीं पता हु इज़ द डूअर ऑफ दैट एक्सप्लेनेशन. सो व्हेन वी डोंट नो हु इज़ द डूअर, देन वी राइट द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस. फॉर एग्जाम्पल, द रोड इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस वॉज डग अप, कि हमारे घर के सामने जो रोड है उसको खोदा गया है, बट हमें नहीं पता कि किसने वो डिगिंग का काम किसने किया है, तो हमने इसको पैसिव वॉइस में लिखा है. द आइडेंटिटी कार्ड्स वर चेक्ड एट द गेट. नंबर 3, द एक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द डूअर ऑफ द एक्शन. व्हेन आवर एक्शन इज इम्पॉर्टेंट, डूअर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. देखो यहाँ पे डूअर लिखा भी नहीं है, क्योंकि अगर पैसिव वॉइस में हम डूअर लिखते हैं ना तो वो बाय के बाद ही लिखा जाता है, लाइक दिस, बाय द हेड गर्ल, बाय ऑल द जजेस, दीज आर द doer. Number 4, we know who has done the action but do not want to name the person. जब हमें ये पता होता है ना कि ये काम किया किसने है, बट हम उसका नाम नहीं लेना चाहते, तो उस केस में भी हम पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, माई इंग्लिश बुक वॉज स्टॉलन. यहाँ पे डूअर का पता है किसने किया वो काम, बट वी डोंट वॉन्ट टू नेम दैट पर्सन. अ कंप्लेंट वॉज लॉन्च्ड अगेंस्ट द टीचर. अब यहाँ पे एक कंप्लेन की गई है टीचर के अगेंस्ट, लेकिन हम बताना नहीं चाहते कि वो किसने की है. सो इन दीज 4 केसेस वी यूज पैसिव वॉइस. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज. नाउ अब हम कन्वर्जन करना सीखेंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कैसे करते हैं.
F पॉइंट सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है? एक्टिव वॉइस इज इन द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, एस और एस इन सम केसेस. ओके. एंड पैसिव वॉइस चेंज करते हुए क्या करेंगे हम? इज आर एम में से कोई एक यूज होगा एंड थर्ड फॉर्म इज यूज्ड. इन पैसिव वॉइस वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म, चाहे कोई भी टेंस को हम चेंज कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, माई पेरेंट्स गाइड मी, एक्टिव वॉइस. दिस इज योर एक्टिव वॉइस. मी बिकम्स आई हेयर. ये इसमें दे नहीं रखा बेटा, प्रोनाउन चेंज होते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस में. ये मैंने कहीं पे नोट डाउन कर रखा है, मैं आपको वो नोट डाउन किया हुआ उसकी पिक दे दूंगी आपको, एंड देन यू कैन राइट दैट इन योर नोटबुक और आप उसको वहाँ से लर्न कर सकते हैं. सो मी इज चेंज इन टू आई. आई के साथ हम एम लगाएंगे. आई एम गाइडेड. थर्ड फॉर्म ऑफ गाइड इज गाइडेड. बाय लगेगा पैसिव वॉइस में, एंड देन माई पेरेंट्स. माया रिस्पेक्ट्स द टीचर्स. तो द टीचर्स पहले आ जाएगा. द टीचर्स आर. थर्ड फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्टेड बाय मान्या. The teachers are respected by Manya. So in passive voice of simple present, passive voice में is MR plus third form. Active हमें पता ही है, हमने tenses वाले में किया है. Simple present की identity क्या है? G point exercise number 2. Here we have to fill these forms given in bracket in the passive form. Passive form means is simple present की passive form क्या है? Is MR plus third form. So all credit cards are accepted. English is spoken, Assam tea is exported, you are advised, wages are disbursed, all parents are requested. Now exercise number 3. Here we have to rewrite these sentences using the passive voice. हमें सारे sentence active voice में दिए, हमें passive voice में उनको convert करना है. For example, number 1 is an accountant checks the bills. So the bills को हम starting में लिखेंगे, the bills. बिल्स प्लूरल है आर. थर्ड फॉर्म ऑफ चेक, चेक्ड, देन बाय, एन अकाउंटेंट. मोस्ट ऑफ द गर्ल्स लाइक प्रेरणा यहाँ आ जाएगा. प्रेरणा इज लाइक्ड बाय मोस्ट ऑफ द गर्ल्स. सो इन दिस वे वी हैव टू डू. ये बेटा आपका बिल्कुल फर्स्ट लेवल है एक्टिव पैसिव वॉइस का, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी आपके पास. आपको सिंपल आएगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और उसको चेंज करना होगा. ज़्यादा ऐसे नहीं आएगा कि कुछ ऑब्जेक्ट से अलग, जैसे जंक फूड डिस्ट्रॉयज आवर हेल्थ स्लोली, जैसे इसमें एक स्लोली ऐड कर रखा है. सो ऐसा अभी नहीं आएगा क्योंकि अभी आपका फर्स्ट लेवल है एक्टिव पैसिव वॉइस का, तो बिल्कुल सिंपल रखेंगे इसको. नाउ सिंपल पास्ट में क्या होता है बेटा? एक्टिव वॉइस वी ऑल नो सेकेंड फॉर्म में होता है, लाइक पीवी सिंधु वन द मैच इजीली. एंड पैसिव वॉइस को हम वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, लाइक द मैच वॉज ईजिली वन बाय पीवी सिंधु. दिस इज पैसिव वॉइस. अब इसका स्ट्रक्चर हमें आगे बता रखा है. नेक्स्ट पेज. एक्टिव वॉइस में सेकेंड फॉर्म यूज होगा, पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब इज सेकेंड फॉर्म. एंड पैसिव वॉइस में वॉज वर हमें देखना है कहाँ पे वॉज आएगा, कहाँ वर, एंड देन थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज थर्ड फॉर्म. सो यहाँ पे हमें जस्ट फिल करना है, फॉर्म्स दी गई हैं उसकी. पैसिव वॉइस में द पंचतंत्र स्टोरीज वर रिटन बाय विष्णु शर्मा. स्टोरीज प्लूरल है तो हमने वर लगाया है, एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ राइट इज रिटन. द प्रोग्राम वॉज चेंज्ड एट द लास्ट मोमेंट. चेंज की थर्ड फॉर्म चेंज्ड, प्रोग्राम सिंगल है तो हमने वॉज लगाया है. एंड हेयर सेम इन सेम वे जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट लिया है वैसे सिंपल पास्ट को चेंज करेंगे. द ओनली थिंग इज दैट यहाँ पे हमें वॉज वर का यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल, द हेड बॉय डिलीवर्ड एन एक्सीलेंट स्पीच. एन एक्सीलेंट स्पीच वॉज डिलीवर्ड बाय द हेड बॉय. वॉज डिलीवर्ड आ गया ना. सो दिस वे वी हैव टू डू दिस. नाउ एल इज सिंपल फ्यूचर टेंस. सिंपल फ्यूचर टेंस में हमें पता है विल और शेल यूज होता है विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. विल और शेल विद फर्स्ट फॉर्म. शेल हमें पता है आई और वी के साथ ही लगता है, वो भी कोई कंपल्शन नहीं है. आप दैट इज योर चॉइस कि आप विल लगाना चाहते हैं या शेल, आई एंड वी के साथ. सो एक्टिव वॉइस में विल शेल रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, लाइक विल हेल्प विल आंसर. विल हेल्प विल आंसर. पैसिव वॉइस में विल बी और शेल बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ये मैंने आपको बता ही दिया है कि पैसिव वॉइस में हर जगह थर्ड फॉर्म का ही यूज होगा. सो
विल हेल्प इज चेंज इनटू विल बी हेल्प्ड, और ये आपको पता ही है दिस विल गो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पे चला जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पे चला जाएगा, जस्ट प्लेस का बता रही हूँ मैं। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, बट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा बिकॉज वो बस डूअर रहेगा। ओके ओके, फॉर एग्जाम्पल माई फ्रेंड्स विल हेल्प मी, आई विल बी हेल्प्ड बाय माई फ्रेंड्स। ओके, नाउ हेयर वी हैव रूट फॉर्म्स इन द ब्रैकेट। हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है सिंपल फ्यूचर का। लाइक द इशू विल बी डिस्कस्ड एट द नेक्स्ट मीटिंग, विल बी डिस्कस्ड, विल बी हेल्ड, विल बी डिक्लेयर्ड, will be awarded, will be changed, will be built. And here सेम थिंग जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट में किया है, वही ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की प्लेस पे चला जाएगा और सब्जेक्ट बन जाएगा। डूअर डूअर ही रहेगा बट एंड में चला जाएगा, बाय लगा के एंड में, और उसके बाद में हम डूअर लिखेंगे। द सेक्रेटरी विल रीड आउट द रिपोर्ट, द रिपोर्ट विल बी रेड आउट बाय द सेक्रेटरी। ये आपको पता है, मैं बता भी देती हूँ कि रीड की जो फॉर्म होती है स्पेलिंग सेम होती है रीड, बट बोलते हैं हम उसको रेड रेड है। पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल में वी स्पीक आउट रेड रेड, रीड रेड रेड, सो द रिपोर्ट विल बी रेड आउट बाय द सेक्रेटरी। सो दिस वे वी हैव टू डू दिस एक्सरसाइज। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस से मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगी, अभी यहीं तक करना है आपको। And I'll give you the solved exercise of this chapter. So revise it well. Starting है आपका बिल्कुल फर्स्ट लेवल है आपका, सब पहली बार आपने एक्टिव पैसिव वॉइस किया है तो आपको कोई ऐसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाली नहीं आएंगी। ओके स्टूडेंट्स, बाय।